What exists between two particles of a solid which does not allow it to move? Tell me. Answer, please. What exists between the particles of a solid which does not allow it to move? That is called force of attraction. In particles of solid, there exists a strong force of attraction which does not allow it to move at all. Right? They can vibrate at their own axis, but they cannot move from one place to another. But in liquids, this force of attraction is a bit weaker, so they are allowed to move a little bit. But in gases, this force of attraction is weakest, and they can move randomly. Got it? Yes, ma'am. Right? Got the force of attractions between particles? Yes. Yes. So which state of matter exhibits greatest force of attraction? Solids. And which state of matter exhibits weakest force of attraction? Yes. Gas. Okay. So which state of matter has largest gaps between the particles? Yes. Yes. How do you prove that? Can you repeat how you know that? How can you prove that the particles in gases are farthest apart as compared to liquid and solids? Because there are more Because there are. intercellular space. How can you prove that? This is the fact you're telling me. Can you prove that by giving any We example? have to give example. Yes. Yes, you have to give an example and prove it to me. Okay. You must have done it in your chapter. Just recall it. What have you done to prove that there is space between these particles? Larger one in gases, smaller one in liquids, and there is no space between particles and solids. Can you tell me any example? No. Okay. Have you ever dissolved salt in water or sugar in water? Yes. What happens when you put a teaspoon of sugar in water? What happens? The sugar can dissolve in the water. It's dissolved in the water. But does that water that overflow or it remains? Ma'am, because in water there are intercellular spaces which are covered by sugar. Yes, that's what I was asking for. I was asking for an example. This is the example. You're proving this that there exists a space between these particles, and when you add sugar to it, that sugar occupies that space between the particles. Right? So this proves that there is space between the particles in liquids and more space in gas particles. Can you compress a balloon? Yes. How that's possible? Because gas molecules are far apart, and when you compress it, they can come close to each other. Okay, talking about forces of attraction. Can you walk easily? You have air in your room. Can you walk easily? Yes. That means that in air, these particles are not attracted very much. So you can move easily, you can push them apart. But can you move easily through water? A little bit. Sorry? Please repeat, what did you say? Ma'am, please repeat the question. Okay, my question was, can you move easily through water? Can you swim as you walk? The same energy. Can you swim with the same energy? No. You have to use more energy to swim. Why so?
because in water these molecules are attracted to each other with a greater force, so you have to break it to move ahead, right? But in gases these are not strongly attracted, so you can easily walk and pull them apart. Got it? Yes. Now can you move through this wall? No. And so why can't you move through a wall? More force of attraction. Because greatest force of attraction between the particles, there is no space. ठीक है? Moreover, आप कोई भूत थोड़े ना हो जो दीवार को क्रॉस करोगे, right? भूत can do that ना? तुम तो डर गए यार. चलो, ठीक है. अभी 9th has not joined us yet, so we'll talk about some more experiments. Like there is an activity, if you must have read about it, when you add KMnO4 crystal to water, what happens? Do you know what is KMnO4? Sorry, what is potassium permanganate? It is a type of element. Element, okay. Element एक single atom होता है. KMnO4 एक पूरा कंपाउंड है पोटेशियम परमैंगनेट, जिसमें पोटेशियम है, मैंगनीज है, ऑक्सीजन है. तो वो एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बना है. इट इज नॉट एन एलिमेंट, कैन कॉल इट अ कंपाउंड. तो पोटेशियम परमैंगनेट एक डिसइंफेक्टेंट है बेसिकली. डिसइंफेक्टेंट समझते हो? डिसइंफेक्ट करना क्या होता है? इन्फेक्शन समझते हो ना? डिसइंफेक्ट करना हुआ इन्फेक्शन को खत्म करने वाला, राइट? सो KMnO4 इज अ डिसइंफेक्टेंट. सो आई विल टेल यू अ स्टोरी. एक बार क्या हुआ, I asked my brother to get a disinfectant. मुझे अपने वाटर टैंक में डिसइंफेक्टेंट डालना था ताकि उसमें जर्म्स जो है वो किल हो जाए. जैसे आप देखते हो, आप स्विमिंग पूल्स में अगर जाते हो तो वहां पर क्लोरीन की स्मेल आती है. वो जो स्मेल होती है ना स्विमिंग पूल में, टिपिकल, दैट इज बिकॉज ऑफ क्लोरीन. क्लोरीन इज ऑल्सो अ डिसइंफेक्टेंट. वो क्लोरीन ऐड किया जाता है ताकि जो जर्म्स है वाटर की वो किल किए जा सके. तो वैसे ही KMnO4 भी एक डिसइंफेक्टेंट होता है. So I asked my brother to get disinfectant from chemist. ठीक है, मुझे लगा वो क्लोरीन लेके आएगा. He got KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट का एक पैकेट आता है, क्योंकि वो भी डिसइंफेक्टेंट है तो केमिस्ट के पास वो मिलता है. पर उसकी जो क्रिस्टल होती है, आप एक क्रिस्टल अगर टैंक में डालोगे पूरा पानी पिंक हो जाएगा. ठीक है, लेकिन वो आया, वो कहता दीदी मैं ले आया. मैंने कहा ठीक है, वाटर टैंक में डाल दो. उसने पूरा पैकेट वो वाटर टैंक में डाल दिया. और हमारे पास 4-5 दिन तक, पहले तो पहला दिन तो पर्पल पानी इतना डार्क, उसके बाद धीरे धीरे अगले दिन वो थोड़ा सा डार्क पिंक, फिर थोड़ा लाइट पिंक. 4-5 दिन तक हम पिंक ही पानी से नहाए. ठीक है, बाकी वाटर फिल्टर यूज किया, लेकिन वो 5 दिन तक KMnO4 ने अपना पूरा असर दिखाया. और धीरे 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 वो 5-6 दिन बाद थोड़ा सा वाटर डाइल्यूट होकर वो पिंक से कलरलेस हुआ. एक बात इसमें क्या पता चली आपको कि KMnO4 की जो एक क्रिस्टल भी है ना, वो इतनी पावरफुल होती है कि वो थाउजेंड्स ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर को पिंक बना सकती है. ठीक है, लेकिन KMnO4 का जो कलर है वो धीरे 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 कम हुआ. इट टुक 4 to 5 days उसको कलरलेस होने में. ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसे नया पानी ऐड होता था, रोज नया पानी फ्रेश वाटर आता था, तो वो उसमें ऐड हो जाता था. डाइल्यूशन का मतलब समझते हो? व्हाट इज डाइल्यूटेड एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन? सुना है ऐसा? डाइल्यूशन का मतलब समझते हो? व्हाट इज डाइल्यूशन? नो. नो. ओके, अगर मैंने 1 ग्लास पानी में 10 टीस्पून ऑफ शुगर डाला है, तो 10 टीस्पून शुगर मतलब वो बहुत ज्यादा घना हो जाएगा. दैट इज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. व्हेन अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज वेरी हाई, इफ आई पुट 10 टीस्पून ऑफ शुगर इन अ ग्लास ऑफ वाटर, तो वो बहुत ज्यादा थिक सा सोल्यूशन बनेगा, जिसको हम कंसंट्रेटेड सोल्यूशन बोलते हैं. ठीक है, सिरप बन जाएगा उसका. बट इफ आई एड वाटर टू इट, ठीक है,
10 टीस्पून वाला तो मीठा भी बहुत होगा, जैसे जैसे मैं उसको वाटर ऐड करूंगी उसमें उसमें उसकी थोड़ी मिठास कम हो जाएगी, ठीक है। अगर एक ग्लास में मैंने उसमें 10 ग्लासेस और ऐड करके बड़ा कंटेनर में डाल दिया, तो वो डाइल्यूशन हुई, एडिशन ऑफ वाटर इज डाइल्यूशन, और उससे होगा क्या, वो कम मीठा हो जाएगा, उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, अमाउंट ऑफ चीनी इन दैट मच अमाउंट ऑफ वाटर कम हो जाएगी। तो डाइल्यूशन इज बेसिकली एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है। तो जब फर्स्ट डे KMnO4 की क्रिस्टल्स उसमें डाली गई थी, तो उसमें बहुत पर्पल, एकदम डार्क पर्पल कलर था। फिर उसके बाद डाइल्यूट होता गया, अगले दिन और फ्रेश वाटर इसमें ऐड हुआ, हम यूज भी कर रहे थे पानी, फिर और फ्रेश वाटर, 3-4 दिन तक उसमें डाइल्यूशन होती गई, और वो कलर धीरे 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 पिंक से कलरलेस की तरफ जाने लगा। 5 दिन बाद हमें थोड़ा नॉर्मल वाटर मिला। दिस प्रूव्स कि उस क्रिस्टल में कितने मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स थे, जो उसका असर 5 डेज तक रहा, ठीक है। तो मतलब जो मैटर है, जो क्रिस्टल है, मैटर हुआ ना, वो सॉलिड है, उसमें मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट थे, जो इतने दिनों तक बिखरते रहे उस पानी में और हमारा पानी को कलर देते रहे, ठीक है। तो दिस प्रूव्स कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर? व्हाट इज इट कॉल्ड? Atom. एटम, ठीक है। आप एटम, एलिमेंट या मॉलिक्यूल, इनमें डिफरेंस समझते हो क्या होता है, या सिर्फ याद किया है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एटम एंड एलिमेंट? जो आता है आपको बोलो। Element are the substances that cannot be broken down into simpler substances by chemical means. We can break down the atoms, but not the elements. Ma'am, elements are the substances that cannot be broken down into simpler substances by chemical means. And this all you have learned, these all are definitions, but do you understand what is difference between atom and element? You just tell me. These all are definitions which you have read, but in your head, do you understand what is atom, what is element? What comes to your mind when you think of an atom? What comes to your mind when you think of an element? Are they two different things? Tell me. Tell me. एलिमेंट और एटम एक ही चीज है या डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं? They are different. Are different. Atom, and give one example of element. Then हाइड्रोजन क्या है? Is it an atom or element? Then table. हाँ जी, Table is an example of any atom. No. Sorry. example table is made up of atoms. You can say that. Atom is only one atom, and element is made up of one kind of atoms. Element group. Listen to me carefully now. See, have you seen periodic table? Yes. Okay, how many elements are there in periodic table? 180. These 118 are elements, right? You have elements. Like we are human beings. Yes. So basically, these 118 are elements. Now, what are we made up of? We have a skeleton, right? All of us have a common thing, which is skeleton. Yes. Yes. Similarly, हर element का जो skeleton है, that is an atom. जिसमें सेंटर में न्यूक्लियस होता है, साइड में शेल्स होती है, उसका बेसिक स्केलेटन है। हाउ डू दे डिफर? 118 नंबर में कैसे बने? बिकॉज दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर शेल्स। तो एटम क्या है? एटम इज समथिंग व्हिच इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियस एंड इट हैज शेल्स, शेल्स में इट हैज इलेक्ट्रॉन। ये जो 118 एलिमेंट्स है, all of them
are atoms only with different number of protons and electrons. तो एटम एक बेसिक स्ट्रक्चर है. एलिमेंट में वो स्पेसिफिक कि मेरे पास इतने प्रोटॉन हैं और इतने इलेक्ट्रॉन हैं. ये हर 118 एलिमेंट्स जो हैं वो सब में डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं. उनका नंबर shows what number of protons do they have or what number of electrons do they have. हर एलिमेंट एक एटम है, राइट? बस उस एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन डिफर करते रहते, इसीलिए टोटल 118 एलिमेंट्स हैं. जितना भी हमारा दुनिया में जो आप देख सकते हो या नहीं भी देख सकते हो, दैट इज मेड अप ऑफ दीज 118 एलिमेंट्स, राइट? वी कैन नॉट सी द एयर, बट एयर में क्या है? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है. ये सारे एलिमेंट्स जो भी एग्जिस्ट करते हैं वो 118 एलिमेंट्स है. कुछ ज्यादा क्वांटिटी में मिलेंगे, कुछ आपको कम क्वांटिटी में मिलेंगे, लेकिन अभी तक यही एलिमेंट्स डिस्कवर्ड है, 118 एलिमेंट्स. So matter is made up of these elements, and the smallest एक element का जो एक तिनका, एक particle, that is called atom. सारे elements atom हैं, बस उनमें number of electrons and protons different है, right? Solids में these atoms are packed so closely that there is no gap in between and they are strongly attracted to each other. Liquids में they are far apart, there is a space between them because of which the forces of attraction is weak. इतना weak कि इनके बीच में कोई बैठ सकता है, आ सकता है. जैसे आप 9 थे, फर्स्ट रो में कोई गैप नहीं है, they are packed like solids, there is no gap in between, right? But second row में there is a gap in between, so कुछ भी उसमें आके कोई भी वहां आके बैठ सकता है. The first line is like solid की packing, second line is liquid की packing, third line में देखो there is greater space, 9 थे, you can see yourself. Packing solid, liquid, gas पूरे order में बैठे हैं ये, ठीक है? तो solid जो है ये best friends हैं. First line, they all are best friends, no gap in between, nobody can come between us, no mixing, ठीक है? Liquid में there is a gap. Things can come and mix there, just like we added sugar to water. वो second line में possible है. Sugar crystal can come in between and sit between them. वो liquid की तरह behave करेंगे. And third line, see, there is so much of gap between them. They are behaving like gases. No force of attraction, so much of gap. आराम से आप जैसे हम, I can move because यहाँ पर air है. एयर के मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो मैं आराम से मूव कर सकती हूँ. मगर अगर यहाँ वाटर होता तो मुझे वाटर मॉलिक्यूल्स की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ के मूव करना पड़ता. और अगर यहाँ पर दीवार आ गई, सॉलिड आ गया, आई कैन नॉट मूव, मैं उसके थ्रू नहीं जा सकती बिकॉज आई कैन नॉट ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सॉलिड पार्टिकल्स. उनमें कोई गैप वैसे नहीं है और मैं उसको तोड़ नहीं सकती हूँ, मेरे में इतनी एनर्जी नहीं है, ठीक है? मेरे पास जो एनर्जी है वो है काइनेटिक एनर्जी. आई कैन मूव, जो जिस एनर्जी से आई कैन मूव दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. तो आप में जो पार्टिकल्स है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसमें गैस के पास सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है. देन लिक्विड, सॉलिड्स आराम से बैठे हैं, दे डोंट नीड एनर्जी. अब बस अपने थोड़ा सा हिल सकते हैं अपनी पोजीशन पे, मूव नहीं कर सकते एक दूसरे के साथ. तो काइनेटिक एनर्जी लीस्ट है आपके पास solids में and most is present in gas, right? Then is name the processes in the following: freezing, melting, evaporation, condensation, sublimation and deposition. What is freezing? Freezing is converting liquid to solid, like ice cream. liquid डाल दो या फिर ice, आप ice tray में पानी डालते हो, उसको आप freeze कर देते हो freezer में, that process is freezing. मेल्टिंग क्या है? आइस बाहर निकालो, पानी में डालो, मेल्ट हो जाएगी, सॉलिड से लिक्विड बन जाएगी. इवेपोरेशन क्या है? बारिश होती है, सारी सड़क गीली हो जाती है, थोड़ी देर में सूख भी जाती है. सन की रेज से, हाँ जी, because of the rays of the sun. yes, because of sun rays, the heat of that water gets converted
from liquid state to vapor state. That process is called evaporation. फिर बारिश हो जाती है, वाटर साइकिल में आपने किया होगा ना, पहले वाटर इवेपोरेट होके क्लाउड्स पे गया, फिर क्या लिखते हो वहां पर, प्रेसिपिटेशन और कंडेंसेशन, ठीक है। वही वेपर्स ऊपर जाके ठंडे हो जाते हैं, ठीक है, एंड दे कंडेंस टू फॉर्म लिक्विड एंड लीड्स टू रेनफॉल, दैट इज कंडेंसेशन। वेपर्स का लिक्विड में चेंज होना, दैट इज कंडेंसेशन। सो व्हाट इज सब्लिमेशन? Sublimation, Change of solid to gas. solid to gas. Have you seen anything which sublimes in your daily life? Hmm? Any example which you've seen in your daily life? Sublimation का? No? Dry ice. हाँ जी, Dry ice. मेरे को नहीं समझ आया बेटा। Dry ice. Have you seen dry ice? You tell me. I asked about the daily life example. Have you seen dry ice? जो आपने देखा हो, मम्मा जब घर पे क्लोथ्स पैक करती है सर्दियों वाले, हैव यू सीन नैप्थलीन बॉल्स उनको पुट करते हुए, या वॉशरूम्स में भी आपने वो व्हाइट सी गोलियां देखी होगी, नैप्थलीन बॉल्स। रूम फ्रेशनर देखे हैं जो वो ऐसे वो एयर या क्या और क्या आता है, रूम फ्रेशनर, वो करीना कपूर भी बने होते हैं किसी किसी रूम फ्रेशनर पे। हैव यू सीन रूम फ्रेशनर्स? Yes, Ma'am, yes. And incense stick also. सब्लाइम एक्चुअली कैम्फर सब्लाइम करता है बेटा। इंसेंस स्टिक्स आपको वो पूरा वो पाउडर आपको मिलेगा, वो बर्न करता है। सब्लाइम जो चीज करती है वो आपको नीचे कुछ भी रेजिड्यू नहीं छोड़ेगी। लाइक आप नेफ्थलीन बॉल्स अगर आप क्लोथ्स में रखते हो, आफ्टर सम टाइम या आफ्टर सम मंथ्स यू विल फाइंड कि वो कंप्लीटली इनविजिबल है, कोई रेजिड्यू नहीं, आपको पता ही नहीं होगा यहाँ कुछ है। अगर आप इंसेंस स्टिक लगाते हो तो आपको वो पाउडर मिल जाएगा ना, तो वो रेजिड्यू छोड़ दिया। लेकिन जो सब्लिमेशन प्रोसेस होती है उसमें आपको रेजिड्यू नहीं मिलता है। मतलब नैप्थलीन बॉल्स अगर आप कपड़ों में डालते हो तो थोड़ी देर बाद या थोड़े टाइम बाद यू वोंट सी एनीथिंग और एनी रेजिड्यू, कोई निशान ही नहीं होगा वहां पर। या कैम्फर आप यूज करते हो, छोटी इतनी सी डिब्बी सी आती है, उसमें हनुमान जी का फोटो भी बना होता है मोस्ट ऑफ टाइम। Medicine. सॉरी, Medicine. अच्छी बेटा। She is saying medicine. मेडिसिन, कौन सी मेडिसिन? जो हम खाते हैं तो She is saying that जब हम मेडिसिन खाते हैं तो वो हमारी बॉडी में डिसॉल्व हो जाती है। लेकिन वो सब्लिमेशन नहीं हुई, डिसोल्यूशन हो गई, डिसॉल्व हुई तो ठीक है। Sublimation means when solid directly converts to vapors, that is called sublimation, right? Solid से directly vapor, ठीक है। तो वो तो हम खा रहे हैं ना, वो तो जैसे अंदर गई, डिसॉल्व हो गई, अब्सॉर्ब हो गई। लेकिन आप देखना, मम्मा से पूछना, मम्मा कैम्फर है घर में, तो उसको आप कैम्फर को बर्न करोगे तो वो सीधा वेपर्स बना देगी। मम्मा से पूछना, नैप्थलीन बॉल्स आपको मिलेंगे घर पे, नैप्थलीन बॉल्स आप कहीं भी पुट करो तो वो धीरे 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 कम होता जाएगा। मैंने तो ओपन भी ऐसे रखे हुए किसी किसी रूम के कॉर्नर में कि हाँ वो अपने आप वो छोटे 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 होता रहता है, एंड इट लीव्स नो रेजिड्यू। तो सबसे कॉमन एग्जांपल तो सब्लिमेशन के आपको ये मिलेंगे। ड्राई आइस आपने वैसे सुना होगा, उसमें भी वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई आइस एंड इट डायरेक्टली सब्लाइम्स, सॉलिड से डायरेक्टली वो वेपर्स बनाता है, ठीक है। So first thing is heated milk with some milk solids kept in the fridge. क्या होगा उसका? Milk solidifies. That process will be called, right? Water in a bowl placed in room disappears after some time. अगर आप एक कटोरी में पानी डालोगे थोड़े से, फ्रीजिंग और कंडेंसेशन। फ्रीजिंग एक बोल में पानी डाल के अगर रूम में रखो, डेपोजिशन कैसे होगी उसकी? डेपोजिशन बोला,
Melting. में पानी थोड़ा सा कटोरी में क्या, मैं जब छोटी थी तो मैंने तो एक छोटे से ढक्कन में पानी रखा था, ठीक है, जस्ट टू सी कि व्हाट हैपेंस। तो मैंने देखा वो एक दिन बाद, आजकल तो वैसे भी समझ है, एक दिन बाद वो पानी का लेवल कम हो गया था, 2 दिन बाद वो पानी का लेवल और कम हो गया। डू द सेम, घर जाना और एक किसी भी छोटी सी चीज में पानी डाल के रखना और एक जगह पर सेफ रख देना, फिर देखना कि वो पानी कम हुआ, वो पानी कम होगा, विच मीन्स वो पानी लिक्विड स्टेट से वेपर्स में जा चुका है, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन, राइट। ये चीज तो नहीं कर, मेल्टिंग कौन बोला था? मेल्टिंग में क्या होता है, कोई चीज मेल्ट होती है, लाइक आप आइस की क्यूब बाहर निकाल के रख दो, थोड़ी देर में क्या होगा? अब ये मत कहना कि वो फ्रीज हो जाएगी, इतनी गर्मी में वो फ्रीज नहीं होगी। जब आप आइस क्यूब बाहर निकाल के रखोगे वो वाटर में चेंज हो जाएगी, सॉलिड से लिक्विड, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग। स्टेज पे ध्यान रखना है कि क्यों, पहले क्या था वो चीज, कौन सी स्टेट में था और अब कौन सी स्टेट में आ गया है। फ्रीजिंग में क्या होता है, लिक्विड से सॉलिड बनता है, मेल्टिंग में सॉलिड से लिक्विड बनता है, सब्लिमेशन में सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनता है। आप स्टेज पे ध्यान रखना कि अब ये क्यों, कौन सी स्टेज में आ गया है। अब सब्लिमेशन में देखो, एग्जाम्पल तो मैंने बता दिए, मगर जो भी एग्जाम्पल है उसमें आप देखना वो लिक्विड बनेगा ही नहीं, पहले सॉलिड था उसके बाद वो सीधा गैस। नैप्थलीन बॉल्स लिक्विड नहीं मिलेगा आपको, वो खत्म, छोटा होता जाएगा क्योंकि वो गैस बन चुकी है, ठीक है। कैंपर में उसको आप जलाओगे आपको लिक्विड नहीं मिलेगा, वो पूरा जल के गैस बन जाएगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। अच्छा, फिर कभी आपने ठंडा पानी ग्लास में पोर किया हो तो देखते हो ग्लास के बाहर वो कुछ छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स सी जम जाती है, आपका हाथ भी गीला हो जाता है, Yes. क्या चीज है वो, क्या प्रोसेस हुई वो? Condensation. कंडेंसेशन हुई। जो ठंडा पानी है वो ग्लास की बाहर वाली मॉइस्ट एयर को कंडेंस करके ड्रॉपलेट्स में चेंज कर देता है, Yes. राइट। तो जो मैंने आपको बोला कि करना, गेट नैप्थलीन बॉल्स फ्रॉम मॉम एंड उनको ऑब्जर्व करो, पानी रखना घर पे, उसको ऑब्जर्व करो 1 दिन या 2 दिन में क्या होता है, ठीक है। और अगर कैंपर है घर पे, उसको मम्मा को बोलना बर्न करके दिखाएं, देखना उसमें लिक्विड बनता है कि नहीं, ठीक है। ओके, करोगे? सी यू नेक्स्ट टाइम। ओके, बाय, थैंक यू। Class 9. Do you have the worksheets also? Yes. चलिए मैम आपको बताती है क्या करना। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। Good morning, ma'am. बेटे मैं आपको मैथ टीच करूंगी, मेरा नाम रितु गोयल है। What is your name? बेटे रितु गोयल। Ma'am, very nice. मेरे को पेशेंट सरप्राइज मैम, वेरी स्वीट नेम मैम। थैंक यू, है ना, बट स्वीट अब आगे है ना, नंबर शुड बी स्वीट, राइट। ऑफ कीजिए और सुनिए पहले, और जैसे मैम कहती है वैसे फॉलो कीजिए, ठीक। अच्छा बेटे, आज हम मैथ्स पढ़ेंगे, अदरवाइज मैथ से डरना नहीं है, मुझे पता है मैथ से सभी डरते हैं, फोबिया है हमें, मैथ क्यों पढ़ना है। मैथ बेसिकली आपके नंबर्स ही हैं, आप करते हो, माइनस करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, डिवीजन करते हो, ये 4 चीजें ही करनी होती है और मैथ खत्म हो जाता है, इतना ही मैथ है। करना कैसे है, विद द हेल्प ऑफ आवर नंबर्स। हम नंबर्स पढ़ेंगे, नंबर को इंट्रोड्यूस करेंगे, उनको जानेंगे, तो Ma'am, your voice is not audible. Math.
Which class? 9th A, 9th B? बेटे आवाज कहाँ नहीं आ रही? 9th A और 9th B? Ma'am, now it's audible. है बेटे? Audible है बेटे? Ma'am, yes. तो बेटे हम नंबर्स पढ़ेंगे. नंबर्स में आपने अभी तक इंटीजर्स, रियल नंबर्स, कुछ नंबर्स पढ़े हैं, उन्हीं को इंट्रोड्यूस. वर्कशीट मिल गई है आपको. वर्कशीट मिल गई है. Yes. Yes. निकालो. पहला क्वेश्चन रीड करते हैं. पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास? बिटवीन टू रैशनल नंबर्स. Ma'am, option C. अच्छा, ऐसे नहीं बताना. मैंने पूछूंगी मैं तभी बताओगे. ठीक है. मुझे कैसे पता चलेगा सबको आता है कि नहीं आता? Okay, ma'am. इसका ऑप्शन है सी. C. There are infinite many rational number between two rational numbers. ये आप कर चुके हो, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन. सारे सही है. No. अच्छा, अब इसने नहीं बताना बेटे क्वेश्चन का आंसर. डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर कैन नॉट बी. क्या लिखा है? कैन नॉट बी. ऑप्शन Non-terminating and non-repeating. D option. D option. A, B, C, D. Which option? D. D. Option is D. option is D. Next question बेटे. Which of the following is irrational? C option. आपको बताया कि एकदम से सबने आंसर नहीं करना. मुझे पूछूंगी मैं तभी आप बताओगे. Sorry, ma'am. बिल्कुल. ओके, इसका आंसर आपने क्या दिया है? ए, बी, सी एंड डी. C. लास्ट लाइन में जो बॉयज बैठे हैं ना वो आंसर करें. 9th बी. बेटा tell me, raise your hands and tell A, B, C, D. लास्ट वाली लाइन में आंसर इज आंसर इज सी. ए रैशनल नंबर क्यों नहीं है? वाई ए इज नॉट अ रैशनल नंबर? ऐसे हर एक ने नहीं बताना बेटा. मैम जिससे पूछेंगी वही बताएंगे. अब ऐसे 22, 23, 13. चलो रोल नंबर 22 बताओ बेटे. वाई ऑप्शन ए इज नॉट अ रैशनल नंबर? 9th A में से रोल नंबर 22. आ जाओ बेटे, आ जाओ. आगे आ जाओ माइक के पास. जल्दी से, quick. You said under root C is irrational. Sorry, under root 7 is irrational. Why A is not irrational? माइक उठाओ, मुंह के पास लो और फिर बताओ. हाँ. Because it is not P upon Q. C. बेटा P अपॉन ये P और ये Q नहीं है. ये तो P अपॉन Q तो है ही है. बेटे अच्छा ओके, आपने बताया कि रूट 7 इज नॉट अ पी अपॉन क्यू, दैट्स व्हाई इट इज अ इररेशनल नंबर. Yes. अब मैंने क्वेश्चन किया व्हाई ए इज अ रैशनल नंबर. Ma'am, because it is in P upon Q form. व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस? Rational number symbol. अच्छा ओके, देन ऑप्शन डी इज आल्सो नॉट इन पी अपॉन क्यू फॉर्म.
Yes. Not an irrational number. It is C option. मैंने ये नहीं बोला बेटा ऑप्शन गलत है, ये मैंने नहीं कहा। मैंने आपको क्वेश्चन पूछा कि जो हमारा डी पार्ट है, ऑप्शन डी है, रूट स्क्वायर रूट ऑफ 81, ये इरेशनल क्यों नहीं है? मैम क्योंकि वो मैं उसकी मैम आती है मैम जैसे इन 9 स्क्वायर रूट। गुड, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट जो है वो एक 9 है और 9 इज अ इंटीजर। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। Yeah, all integers are rational number. अगर मुझे इसको P upon Q फॉर्म में लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगी? 9/1। गुड, वेरी गुड। अब आप जाओ बेटे, अपनी सीट पे बैठ जाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं बेटे आपके पास। फर्स्ट असर्शन है 0.329 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। रीजन देखो, अ डेसिमल इन विच अ डिजिट और अ सेट ऑफ अ डिजिट is repeated periodically is called a repeating or recurring decimal। क्या बोला इन्होंने कि डेसिमल जहां पे डिजिट या सेट ऑफ अ डिजिट, सेट ऑफ अ डिजिट को क्या समझते हो? सेट ऑफ अ डिजिट का मतलब है, मैंने कहा मेरे पास एक सेट है, सेट है 1 2, ठीक है, ये ऐसे रिपीट हो रहा है, 1 2 आ गया, देन 1 2 आ गया, फिर से 1 2 आ गया। तो ये जो 1 2 है ना, ये सेट बन गया, ये एक सिंगल डिजिट ना होके एक सेट ऑफ अ डिजिट बन गया। जब हम सेट ऑफ अ डिजिट की बात करते हैं, वहां एक नंबर नहीं होता, एक इंटीजर नहीं होता, एक से ज्यादा होते हैं, तो उसको बोलते हैं सेट ऑफ अ डिजिट। क्लियर है बेटे? सेट ऑफ अ डिजिट। Yes. तो यहाँ पे बोला है सेट ऑफ अ डिजिट इज रिपीटेड, तो हमने क्या देखा, 12 जो है 1 2 वो रिपीट हो रहा है आफ्टर डेसिमल। 12 1 2 जो है वो रिपीट हो रहा है आफ्टर डेसिमल, तो ये सेट ऑफ अ डिजिट है। क्लियर है? अगर मैं लिख दूं यहाँ पे 0.2222, तो क्या ये सेट ऑफ अ डिजिट है? ये सेट ऑफ अ डिजिट नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, सिंगल डिजिट, एक डिजिट रिपीट हो रहा है। 1 डिजिट रिपीट होता है तो अब हम उसको सेट ऑफ अ डिजिट नहीं कहते। एक से ज्यादा, 2 डिजिट रिपीट हो, 3 डिजिट रिपीट हो, 4 डिजिट रिपीट हो, तो उनको बोला जाता है सेट ऑफ अ डिजिट। जब हम कुछ डिजिट को इकट्ठा करके बार बार वही नंबर लिख देते हैं, तो वो होता है सेट ऑफ अ डिजिट। क्लियर है बेटे? तो इस क्वेश्चन में रीजन में क्या दिया हुआ है, a decimal in which a digit, एक डिजिट, just set of a digit is repeated। जब हमारे पास सिंगल डिजिट, just set of a digit रिपीट होता है periodically। periodically मीन्स एक टाइम के बाद, जैसे 2 के बाद 12 2 डिजिट के बाद रिपीट होना शुरू हुआ, ये 2 डिजिट के बाद रिपीट होना शुरू हुआ, यहाँ पे ये सिंगल सिंगल डिजिट के बाद रिपीट हो रहा है। कई बार हमारे पास ये भी चीज दिखती है, जैसे मैं कहूँ 0.5737373, तो यहाँ देखो आप 3 डिजिट के बाद रेपिटेशन शुरू हुई सेट ऑफ अ डिजिट की। सेट ऑफ अ डिजिट क्यों है यहाँ पे? क्योंकि रेपिटेशन 2 डिजिट की हो रही है, इसीलिए सेट ऑफ अ डिजिट। क्लियर है बात? और यहाँ पे अगर हम periodically बात करें तो 3 डिजिट्स के बाद रेपिटेशन शुरू हो रही है सेट ऑफ अ डिजिट, तो हम कहते हैं periodically रेपिटेशन। और इसको हम क्या बोलते हैं? रिपीटिंग, रिपीट हो रहे हैं, रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, क्या ये टर्मिनेटिंग होते हैं? ये जो रीजन दिया है, इसका इस असर्शन से कोई लेना देना है, रिलेशन है कोई? इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है बेटे? अच्छा, 9th बी में बताओ, रोल नंबर 5 कौन है? 9th बी, रोल नंबर 5।
Roll number 5, come near mic, beta. Come near mic quickly. If roll number 5 is, yeah. Come. मैं क्वेश्चन रिपीट कर बेटे क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ। मैंने कहा जो रीजन और ऑब्जेक्शन है इनमें कोई रिलेशन है? जो दिया है यहीं पे, एक्स्ट्रा इधर उधर नहीं जाना, रैशनल नंबर इरेशनल नंबर में नहीं पहुंचना। सिंपल मैंने पूछा है कि टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग कोई रिलेशन रखते हैं आपस में? Yes, sir. क्या रिलेशन रखते हैं बेटे? चलो इसको समझो। मैंने ये नहीं पूछा था, अदरवाइज ठीक है रिलेशन है, वो तब है जब हम रैशनल नंबर या इरेशनल की बात करते हैं। ठीक है, जब हम अजर्शन रीजन रीड करते हैं ना बेटे, तब हम देखते हैं कि यहाँ पे बात तो टर्मिनेटिंग की कर रहे हैं और हमें रीजन किसका दे दिया? रिपीटिंग का दे दिया। तो इन दोनों में तो ऐसा कोई रिलेशन ही नहीं है, दोनों ट्रू हैं। हमें पता है, मैंने एग्जांपल भी दे दी कि रिपीटिंग क्या होता है। ट्रू है, रीजन आपका ट्रू है, पर जो अजर्शन दिया है वो उसका रीजन नहीं है। ठीक, चलो मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। एक, आप जाओ बेटे अपनी सीट पे। बेटे पहले हम बात करते हैं कि टर्मिनेटिंग की, है ना। आपने अगर टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। आपको मैं जैसे समझा रही हूँ आपको समझ आ रहा है, ठीक है। अब अगर मैं ऐसे समझाऊं, सपोज आपको मेरा, मैं टीच कर रही हूँ, नहीं समझ आया, तो आप मेरी कंप्लेंट कर सकते हो कि हमें तो इस टीचर से समझ नहीं आया। तो क्या होगा? मेरा काम रुक जाएगा, मेरी जगह कोई और टीचर आके पढ़ाएगा। तो मुझे क्या कर दिया उन्होंने? टर्मिनेट कर दिया। ठीक है, मेरा काम वहीं पे रुक गया, तो मुझे क्या कर दिया? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मीन्स जब हम कुछ कर रहे हैं, एक टाइम के बाद वो चीज खत्म हो जाती है। मैंने आज लेक्चर दिया, समझ नहीं आया, हमें तो समझ नहीं आया, भाई टीचर चेंज कर दो, हमें नहीं इस टीचर से पढ़ना, तो मेरा वर्क वहीं रुक गया। जब हमारे पास कोई चीज रुक जाती है टाइम के आगे, जैसे ये है, मैंने यहीं पे स्टॉप कर दिया, आगे मैंने कुछ नहीं लिखा, तो इसका काम खत्म हो गया, तो यहीं पे स्टॉप कर गया, तो ये क्या हो गया हमारे पास? टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट का मतलब होता है वर्क को खत्म करना। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है हमारे पास? स्टॉप होना। अगर सिंपल लैंग्वेज में हम इसको समझें तो क्या है? स्टॉप होना। कोई चीज यहाँ पे रुक जाती है वो टर्मिनेट होगी। ठीक है, अगर इसकी जगह मैं कोई और एग्जांपल लूं, 0.35, 35, 35 अप टू सो ऑन, क्या ये टर्मिनेटिंग है? No. जो चीज तो रुक गई आपके पास, स्टॉप हो गया, जिसका काम खत्म हो गया, अब उसको काम नहीं करना आगे, कोई डिजिट और नया नहीं आएगा आपके पास, ना ही ये आएगा ना ही कोई और आएगा, तब वो क्या है आपके पास? टर्मिनेटिंग। ठीक है, और जो चीज चल रही है, अब सपोज इसी में मैं कहूँ आपको मेरा पढ़ाना पसंद आया, आपको नहीं, हमें तो इसी टीचर से पढ़ना है, इसी से ही कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो मेरा वर्क चलता जाएगा, मैं डेली आऊंगी, आपको पढ़ाऊंगी, अगर आपको मजा आएगा तो, है ना। तो ये क्या है हमारे पास? नॉन टर्मिनेटिंग, जहां पे काम खत्म नहीं होता, कॉन्टिन्यूसली चलता जाता है, हमें उसका एंड नहीं पता, हमें नहीं पता कहाँ जाके रुकना है। ठीक है, तो ये क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्या है? यस बेटे, समझ आ रहा है?
सेकेंड लाइन, 9 गर्ल्स। बेटा क्या कर रहे हो 9th बी में गर्ल्स, क्या लिख रहे हो? आपको समझ आ रहा है? ठीक है, बैठे, क्लियर है बेटे? तो हमने क्या किया है, टर्मिनेटिंग का मतलब समझा है। टर्मिनेटिंग होता है जब हमारे पास कोई चीज वहीं पे स्टॉप हो जाती है, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, जब चीज कॉन्टिन्यूसली चलती है, नहीं होती, तो वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर है बेटे? टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। Yes. कि हम एक असाइनमेंट भी करेंगे, पहले हम प्री वर्कशीट आपकी खत्म करते हैं उसके बाद, ठीक है। वापस चलते हैं। ये बेटे यहाँ पे क्लियर हो गया आपको कि जब हम टर्मिनेटिंग की बात कर रहे हैं तब हम बता रहे हैं कि ये जो डेसिमल है ना, 9 के बाद स्टॉप हो गया, इसके बाद कोई नंबर नहीं आएगा, मीन्स ये रिपीट ही नहीं होगा। 3 2 9 कोई भी रिपीट नहीं है, इसके बाद भी हमारे पास नंबर नहीं आ रहे, रिपीट भी नहीं हो रहे। तो यहाँ पे क्या वर्ड यूज कर लिया इन्होंने, रिपीट यूज कर लिया। तो दोनों अलग अलग हो गए ना, चीजें अलग अलग हो गई। बेशक ट्रू है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या आ गया, The option. both A, assertion A and reason R are true, but R is not the correct explanation of a A, क्योंकि उन्होंने टर्मिनेटिंग नहीं समझाया, उन्होंने बात रिपीटिंग की कर दी है। क्लियर है? बात क्लियर है? इसमें कोई डाउट बेटे? No. नेक्स्ट करते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, assertion is rational number laying between two rational number x and y is x plus y divided by 2। सही है? ये करेक्ट है? Assertion is true. Reason is false. Option C. जस्ट अ मिनट बेटे, मैंने पहले ही बोला है ऐसे आंसर नहीं देना, ओके। Yes. हाँ जी, 9th है, Yes. 9th है, रोल नंबर 10 बेटे आ गया हो माइक के पास। Absent. एब्सेंट, रोल नंबर 11, 9th है, हैंड डाउन। 9th बी हैंड्स डाउन बेटा, पहले हमें 9th ए से पूछिए। रोल नंबर 11 बेटे 9th है। ज्योति मैम थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करना है। हाँ जी बेटे, आगे आ जाओ थोड़ा सा, मुझे आप दिख नहीं रहे हो एक्चुअली। हाँ जी, ठीक है बेटे, ये assertion है आपके पास। आप मुझे ये बताओ कि ये ट्रू है कि फॉल्स है assertion आप I'm true. है? ओके, ठीक है। और रीजन, देयर इज वन रैशनल नंबर लेइंग बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर। False. तो कितने हो सकते हैं? अगर वन नहीं है तो कितने रैशनल नंबर आप फाइंड कर सकते हो बिटवीन टू रैशनल नंबर? Infinity. ठीक है, इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर हम बिटवीन टू रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। जाओ बेटा अपनी सीट पे जाओ। अब सपोज यहाँ पे मेरे पास एक नंबर लाइन है, मैंने नंबर लाइन प्लॉट कर दी, ठीक है। दो नंबर हम ले रहे हैं, नंबर 2 एंड नंबर 3, दो नंबर लिए, 2 and 3 आर इंटीजर। क्या ये रैशनल है बेटे? 2 and 3 इंटीजर्स हैं, क्या ये भी रैशनल है? Yes. तो ये भी रैशनल नंबर है। अब 2 and 3 के बीच में ये जो मैंने लाइन प्लॉट की है ना, यहाँ वाली, ये वाली लाइन, इसमें आप जितने मर्जी चाहो उतने रैशनल नंबर लिख सकते हो। P अपॉन Q फॉर्म होती है आपकी रैशनल नंबर, ठीक है। जितने चाहो, जैसे मैंने लिख दिया 2 अपॉन 5, लिख रहे हैं 2 अपॉन 5। और बताओ, 2 upon 6. चलो
जितने मर्जी लिख सकते हो, इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर आप फाइंड कर सकते हो बिटवीन टू इंटीजर्स और टू रैशनल नंबर। क्लियर है? ये है आपके पास। नेक्स्ट सजेशन क्या है? आंसर सबने नहीं देना, जिससे पूछूंगी वो आंसर देगा। क्लियर है? ठीक है, सजेशन रीड करते हैं। 5 इज अ रैशनल नंबर। फिर सारे बोल पड़े। ओके, 9 थे, रोल नंबर 7। 9 थे, रोल नंबर 7। हैंड डाउन कर लो बेटे, नीचे हैंड। ट्रू। क्यों ट्रू है भाई? Yes, क्यों ट्रू है? 5 इज अ रैशनल नंबर है तो क्यों है? because when rational number started from 1. बेटे रैशनल नंबर स्टार्टेड फ्रॉम 1 एंड नेचुरल नंबर स्टार्टेड फ्रॉम Oh, 0. होल No, नंबर। no, ma'am, no, ma'am, because rational number is a form of P over Q. हाँ, रैशनल नंबर पी अपॉन क्यू। ये तो पी अपॉन क्यू फॉर्म नहीं है, तो क्यों रैशनल नंबर है ये? जो 5 है वो तो पी अपॉन क्यू फॉर्म नहीं है, तो ये रैशनल नंबर क्यों है? बेटे कोई भी जो हमारे पास इंटीजर होता है ना, कोई भी इंटीजर, आपके पास जितने भी इंटीजर्स हैं उनके नीचे आप 1 लगा सकते हो। अब 5/1 और 5 में कोई डिफरेंस दिखता है आपको? No. 5 भी वही है, 5/1 की वैल्यू भी 5 ही आएगी, है ना? 5 ही आएगी। अब ये क्यू फॉर्म बन गया, बन गया ना? Yes, sir. ये पी अपॉन क्यू फॉर्म है तो हो गया रैशनल। Yes. तो हर इंटीजर जिसका होल नंबर, इंटीजर जितने भी है उनके नीचे आप 1 लगा दो, नेगेटिव है पॉजिटिव है, वो पी अपॉन क्यू फॉर्म में बन जाता है। Okay. क्लियर? तो ये क्या हो जाता है? एक रैशनल नंबर। आगे रीजन भी आपने आंसर करना है। स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल। False. फॉल्स। ओके, क्यों फॉल्स है? स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर क्यों फॉल्स है? एक एग्जांपल दे सकते हो क्यों फॉल्स है? Ma'am, square root of prime number. स्क्वायर रूट ऑफ अ Ma'am, prime number rational. Prime number in rational. स्क्वायर रूट ऑफ अ प्राइम नंबर इरेशनल। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने यही पूछा है, तो फॉल्स क्यों हुआ? स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर, टू तो इंटीजर है, टू इंटीजर है, Yes. इसका मैंने स्क्वायर रूट कर दिया तो ये इरेशनल हो गया। Yes. तो क्या सारे इरेशनल हो जाएंगे जितने मर्जी, जो भी मैं इंटीजर उठा लूं? Yes. No, no. क्यों नहीं होंगे? एग्जाम्पल चलो मैं लिख के देती हूँ। अगर मैं लिख दूं स्क्वायर रूट ऑफ अ 9, क्या ये इरेशनल है? क्यों नहीं है बताओ? Ma'am, because कोई नहीं, जो मर्जी बताओ आंसर, गलत बता दो सही बता दो, मैंने कोई जज नहीं करना बेटे आपको, कोई वो इशू नहीं है। आप बताओ जो भी आपके दिमाग में आता है वो बताओ। ma'am, because 9 multiplied with 3. बिकॉज 9 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ 3। 3 तो रूट से बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट से बाहर लिख सकते हो 3 को, और जो रूट से बाहर आ जाए इंटीजर वो तो इरेशनल होता ही नहीं है, उसके नीचे तो हम 1 लगा सकते हैं। दिस इज अ पी अपॉन क्यू फॉर्म, तो ये क्या है हमारे पास? रैशनल। ठीक है, तो हमारे पास रीजन क्या हो गया? ट्रू फॉल्स हो गया। स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर इरेशनल। हमने तो एक पॉजिटिव इंटीजर फाइंड कर लिया जो कि रैशनल है। क्लियर है ना? बात क्लियर है? Yes.
अब क्लियर हो गया कि ये रैशनल क्यों है, 5 रैशनल क्यों है, Yes. और ये भी क्लियर हो गया कि हर स्क्वायर रूट Yes. नहीं होता। ठीक है बेटे, ओके बेटे, जाओ अपनी सीट पे जाओ। क्लियर है, इसका आंसर क्या आ गया फिर? ऑप्शन ऑप्शन इज सी, ऑप्शन इज सी। assertion A is true but reason R is false। False. क्लियर है बेटे, इसमें कोई डाउट? No. नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है बेटे, ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस। ये कुछ क्वेश्चंस हमने किए हैं। ये जो स्लाइड है इसमें हम नंबर्स की बात करते हैं, हमारे पास कौन कौन से नंबर है। वैसे तो मैंने ये देख लिया, आपको काफी नॉलेज है, तो ये उनके लिए जिनको थोड़ा बहुत कोई डाउट है। ठीक है, फटाफट करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इस पे। सबसे छोटे नंबर्स हमारे पास नेचुरल नंबर्स होते हैं। सबसे छोटे नंबर नेचुरल नंबर्स होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल, 9th बी फर्स्ट लाइन गर्ल्स, व्हाट हैपन बेटे? सुन रहा है, मेरी आवाज आ रही है आपको? Yes. Yes. ध्यान से, कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की। कौन कौन से नंबर्स आते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं, और वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट, हम अगर नेचुरल नंबर में एक जीरो ऐड कर दें, Whole Whole number. number. इसी तरह इंटीजर्स क्या है, अगर नेचुरल नंबर के आगे माइनस साइन लगा दो आप और होल नंबर भी ऐड कर दो, तो हमारे पास क्या बन जाता है? Integer. इंटीजर्स जो है वो होल नंबर और नेचुरल नंबर से बड़ा है। सारे नेचुरल नंबर और होल नंबर इंटीजर के अंदर आ जाते हैं, उसके अंदर समाये हुए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हमारा जो टॉपिक है रैशनल नंबर। इतना तो क्लियर हो रहा है कि जो रैशनल नंबर है उसके अंदर कौन कौन से नंबर है। उसके अंदर Integers, whole Integers, number, whole numbers, natural numbers. सोच में जाना, जब तक मैं नहीं बोलूं तब तक क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, ओके बेटे? ठीक है, रैशनल नंबर हमारे पास क्या है, जो इंटीजर भी होते हैं, होल भी है, नेचुरल भी है। मीन्स सबको अपने अंदर समा के रखते हैं। रैशनल नंबर बड़े नंबर्स होते हैं, इन सबसे बड़े नंबर्स हैं हमारे पास रैशनल नंबर, सारे इसके अंदर समाये हुए हैं। पर इनकी खुद की भी एक प्रॉपर्टीज है। रैशनल नंबर हमारे पास किस फॉर्म में है? पी अपॉन क्यू फॉर्म में, है ना? यही पढ़ा हमने, पी अपॉन क्यू फॉर्म, एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, ये रैशनल नंबर होते हैं। अब ये देखो, कुछ नंबर्स हैं मेरे पास, ये चलो रैशनल है, पी अपॉन क्यू फॉर्म, ये भी पी अपॉन क्यू फॉर्म है, ये भी रैशनल है। 3/3.5, क्या ये रैशनल है? yes. 9th बी फर्स्ट लाइन गर्ल्स में जो मिड में बैठी है, बेटे आप बताओ क्यों रैशनल है ये? Ma'am, we can write them in the form of fraction, in the form of P and Q. कैसे बताओ, कैसे लिखें? 35 over 10. 35/10 10. पी अपॉन क्यू फॉर्म। इसी तरह हम इसको भी पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख सकते हो। है ना? तो यहाँ पे अगर मुझे पी अपॉन क्यू फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना, मैं वैसे डेसिमल से देखना चाहूँ कि रैशनल है या इरैशनल है, तो इसकी खुद की एक डेफिनेशन है जो हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इरैशनल नंबर्स की। इरैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर कौन से होते हैं? Form of P over Q. ठीक है, नॉट पी अपॉन क्यू फॉर्म, ये इसमें
नॉट पी अपॉन क्यू फॉर्म। और जितने भी आपके रूट्स फंक्शन, स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर, जो रूट से बाहर नहीं आ सकते नंबर, जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, प्राइम नंबर जिसको आप बोल सकते हो, ठीक है। और क्यूब रूट कहने का मतलब कोई भी इंटीजर जिसकी पावर फ्रैक्शन में है और उसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, इसको हम लिख सकते हैं, मैं कहूँ 5 रेज टू पावर 1/2। पावर क्या है, फ्रैक्शन में पड़ी है, ठीक है। 1/2 फ्रैक्शन है, इतना तो पता है। 5 एक प्राइम नंबर है, सॉल्व नहीं कर सकते इसको आप। अगर इसकी जगह मैं ये लिख दूं 5 रेज टू पावर 1/3, पावर क्या है, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन 5 जो है वो भी आप रूट से बाहर नहीं निकाल सकते। फाइव की पावर 1/3 सॉल्व नहीं कर सकते, तो जो भी हमारे पास इंटीजर, वो इंटीजर हैंग होगी।